हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट के आज के मैथमेटिक्स के पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। सो क्वेश्चन 71 से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन 90 तक 20 क्वेश्चंस थे आपके पास। सो द वैल्यूज ऑफ टी इफ द एरिया ऑफ द पेंटागन ए बी सी डी। सो यू आर गिवन अ पेंटागन, आपको एक पेंटागन दिया हुआ है, उसका एरिया भी दिया हुआ है 45/2। यू आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी एंड ई में यू आर गिवन कोऑर्डिनेट जिसमें 2, t दिया है एंड यू वांट टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। तो हाउ विल यू फाइंड दिस? तो बेसिकली ये जो भी पेंटागन है, यू कैन ट्राई टू प्लॉट इट ऑन अ कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम टू बेटर विजुअलाइज दिस। तो लेट्स ट्राई टू सी हाउ विल इट लुक। So it is one is to do is the something side is minus one is going for 0.2. So this is and we're supposed to find E. E का एक कोऑर्डिनेट तुमको नहीं पता, तो E is somewhere here. E के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, t. Now t can be positive, negative. You still don't know, right? So to figure out t, you first you are given a condition जहाँ पे you are given area of pentagon. तो तुमको area of pentagon दिया हुआ है. So now you can triangulate this pentagon very easily, right? So you know area of the pentagon is equal to the area of triangle ABC, triangle ACD, and triangle ADE. So area pentagon is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD plus area of triangle ADE. Correct? Triangle. अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वेरी इजी, राइट? अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इज एज सिंपल एज दिस: मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y2। तो बस अगर हम ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी, प्रॉब्ली इन मॉड टी। तो अगर वो जो भी mod t का एक्सप्रेशन है, if that is positive that is one solution for t and if that is negative that is another solution for t. So if we just solve this, we'll most likely get the answer. So we can quickly try to solve it. तो area of triangle ABC कितना है ये देखते हैं। So 45/2 is equal to 1/2 into x1 is x coordinate of a into y2 5 minus of -1, so +1, plus x coordinate of b -2 into y coordinate of c y3, right? तो पहले हम इस ट्रायंगल का कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया, राइट? सो दिस इज a b c, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट? So -3 comma -1 comma -1 -3, and then plus x3 is -3 into y1 minus y2. So y1 is 3 minus 5 plus now area of triangle ACD, ये वाले एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, राइट? So again x1 is 1, y1 y2 is -1 and y3 is minus of -2, so +2 plus। तो बस बेसिकली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर दो and you'll get an expression. You just need to solve the expression. So here x2 is -3 into -2 -3 plus x3 is 0. So x को coordinate of d is 0, तो आगे का लिखने की भी जरूरत नहीं, प्लस हाफ इंटू आगे क्या है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? ए डी ई। सो ए मतलब ये -2 -t, सो t आ गया, राइट? एंड पॉसिबली यहाँ पे हमें मॉड यूज करना चाहिए बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इस एक्सप्रेशन की दो वैल्यूज आ सकती होंगी, तो प्लस 0 into something which we don't care about and 2 into 3 minus of -2, so +2, which is this. So basically you get an expression जहाँ पे, let me just go down. तो बस अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, राइट? सो by 2 काटोगे दोनों साइड पे, यहाँ पे बचा 5 + 1 6 into 1 6, -2 into -4 plus 8 and -3 into -2 so +6। तो ये तो वैसे भी पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ दिस इज एनीवे द सेम थिंग। प्लस ये 2 हमने पढ़ा दिया था, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से -1 + 2 is 1, -3 into -5 is 15 and plus 0, so mod of this
plus mod of uh, this is 2 into 5 10 minus 2 minus t. Okay. So this is 45 is equal to 6 plus 8 is 14 plus 6 is 20 plus 16 plus या तो 8 minus t, तो ये देखो ये कितना है 8 minus t, या तो if 8 minus t is positive then mod of 8 minus t is 8 minus t, if 8 minus t is negative then it can be t minus 8, correct? So these are two possible things that we can substitute in the equation. So if we try to further solve this, 45 minus 20 is 25 minus 16 is 9 is equal to 8 minus t, or 9 is equal to t minus 8. So t is equal to minus 1 or t is equal to 17. So this should be the correct answer. So if you look, this is the first option, right? So this one is the correct answer. Uh, I think this is one question which had a little more lengthy calculation than the general other questions. This took some time वो calculate करके चीजें निकालने में भी. It takes a little bit of time, and अगर आप थोड़े से भी weak हो calculations करने में, so it will probably take you more time. So this is one of the time consuming questions, I think. लेकिन इसके अलावा I think other questions are pretty easy. So the ratio of base area and the curved surface area of a cone is 40 over 41. If its height is 18, find the air capacity of the tent in terms of I. तो इसमें you are given a cone basically. So the ratio of base area and the curved surface area of a conical tent is 40 to 41. If the height is 18 centimeter, find the air capacity. So air capacity मतलब you have to find the volume. So you are given a cone basically. तो इसमें surface area दिया हुआ है. So the surface area of the cone is of the conical part is pi r into root over h square plus r square, right? If this is r and this is h. So you're given a1 uh, is to A2 or A2 is to A1. So surface area of the bottom is pi r square because वो circle है सीधे सीधे. So you're given A2 is to A1 is 40 is to 41, and then you are asked to find the volume. So volume of the cone is 1 by 3 pi r square h, correct? तो तुम अगर तुमको ऑलरेडी h दिया हुआ है, h is 18. So if using this relation, if you can find r, you are done. You just have to substitute values and you'll get the answer. So basically a2 is pi r square by pi r root over r square plus h square, which is 40 over 41. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 41r is equal to 40 into root over r square over r square plus h square. Squaring both sides, so 1681, 41 का square, r square is equal to 1600 r square plus 1600 h square. So basically if you simplify this, so you'll get r over h is equal to 40 over, so ये यहाँ पे गया और यहाँ पे आ गया 40 over 9, right? Because you got r square, देखो अच्छा तुमको यहाँ पे मिला r square over h square is equal to 1600 over 81. So taking under root over both sides, you will get this relation. तो अभी सिंपली इस रिलेशन को अगर तुम यूज करोगे तो you can find r will be equal to 40 into height is given 18, so by 9, which is equal to 80 centimeter. तो अब तुम सिंपली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो 1/3 पाई के टर्म्स में निकालना है तुमको, तो 80 स्क्वायर into 18, so 1 and 6, so you are 64 into 6 into 100. So 6 4s are 24, 36, 38, 384, 00 cubic meters, right? Cubic centimeters. Pi, एक pi भी था, right? Here we have a pi, so we never actually put the value of pi because it is given in this. So 38400. So this is your answer, right? So option number D. So question 2 का 4. Let's move on to question number 3. Okay, so question 3 में you are given center of a circle of diameter 4 and OABC. This OABC is a square. The shaded area is 1/3 of the area of square. Then the side of the square is. तो देखो हमको ये एक सर्कल दिया है, सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ से स्क्वायर बन रहा है. तो the drawing is not very accurate, but consider that this is square. So OABC. तो देखो you are given
ये शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 1/3 एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो, सिंस दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, इसका मतलब सिंस दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, राइट? तो 90 degrees in the sense 1/4 of area of circle. So 1/4 the area of circle is 1/3 the area of triangle. Area of circle. The shaded portion is basically area of shaded portion. This is basically 1/4 of the circle, right? Because ये 90 डिग्री है, पूरा तुम अगर सर्कल कोई भी देखोगे तो यहाँ पे these are the four quadrants, right? So 90, 90, 90, 90. So basically this is 1/4 of the area of circle. So 1/4 the area of circle is equal to 1/3 area of square. So तुमको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है क्या? यू आर गिवन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो यू नो द रेडियस विल बी हाफ द डायमीटर, सो सर्कल का रेडियस इज पाई इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आई एम अज्यूमिंग सबको ये तो पता है। तो 1/3 इंटू, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी कॉल्ड ए, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए स्क्वायर, so this basically becomes 4 and 4 gone, and so a is equal to root 3 pi. Correct. So this is our answer. So option number 2. So let's proceed to the next question. Let's leave this. For the fourth question, the mean of some numbers is given is the mean of 1, 3, 4, 5, 7, 4 is given to be m. The numbers 3, 2, 2, 4, 3, 3, p have a mean of m minus 1, and the medium. अच्छा, ये spelling mistake है. This is the median, which is q. You need to find p plus q. So this looks to be an extremely easy question. So you're given 1, 3, 4, 4, 5, 7. इनका mean है m. So let's find out what is m. Mean मतलब sum of all these numbers over the number of terms. So 1 plus 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 7 over कितने numbers हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 over 6. So this is 1 plus 3, 4, 4 plus 4, 8, 12, 12 plus 12, 24. So this is 24 over 6, which is 4. So m की value आ गई 4. Now yes, that you are told that 3, 2, 2, 4, 3, 3, p have a mean of m minus 1. So basically 3 plus 2 plus 2 plus 4 plus 3 plus 3 plus p over upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terms, right? So mean क्या होता है? Sum of all the numbers by total number of numbers that are there. This is equal to m minus 1, which is equal to 4 minus 1, 3. So you can find p from here, right? So p की value कितनी आती है? 7, 21. 21 minus 3, 18. Minus 4, 14. Minus 4, 10. और 10 में से जाएगा 4. So p की value is 4. Now using this p की value, you can easily find the median q, right? And you need to answer what is p plus q. So p is 4. तो numbers क्या क्या हैं? Median के लिए you just arrange them in ascending order. तो ये हमने सारे numbers, सातों number को ascending order में arrange कर दिया. And since there are odd number of terms, इसमें जो बीच का होगा, this is median. So this is q. So p plus q is equal to 4 plus 3, which is equal to 7. So option number 4. Moving on to the next question. Quickly keep clearing this. देखो, the question paper was not very difficult. मतलब I think only the first question took us a little bit time. बाकी सारे तो काफी आसान से ही लग रहे हैं. तो ये 30 by x minus y plus 44 by x plus y is equal to 10, and 40 by x minus y plus 55 by x plus y is equal to 13, and you need to find x minus 3. So so this is something that even a ninth class student probably will know. तो ninth class के students को भी ली टू भी पढ़ाते समय linear equation in two variables पढ़ाते समय I think this is very clear that this is a linear equation in two variables. Like this is a question which is reducible to linear equation in two variables, right? तो क्या करेंगे हम? Let x minus y be called a and let x plus y be called b. तो अब इनको अच्छा, let's say 1 by x minus y is called a and 1 by x plus y is called b. तो क्या हो गया इक्वेशन? 30a plus 44b is equal to 10, and 40a plus 55b is equal to 13. तो अभी इसको एलिमिनेट
कोई भी वेरिएबल को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट ए, इट लुक्स रिलेटिवली इजी, राइट? तो सिंपली एलिमिनेट के लिए क्या करेंगे, इसको पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन वी सब्ट्रैक्ट। तो दिस इज 120a एंड 120b, सो दिस सॉरी 120a एंड 120a, तो 0a बचा, तो बेसिकली नथिंग। 4 4 4, so 16 1 4 4 176b minus 15 and 16, so 165b is equal to 40 minus 39। तो b की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 11b is equal to 1, so b is equal to 1 over 11। this is something we have। Now we can substitute this b की value in any of the equations above। so let's try to substitute in first equation। तो 30a plus 44 into 1 by 11 is 4 is equal to 10। so you have 30a is equal to 6 and a is equal to 1 over 5। सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, राइट? एक बार तुम्हारे पास a और b की वैल्यू आ गई तो तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू a था विच इज 5, सॉरी x माइनस वाई इज 1 बाई a एंड 1 बाई a इज 1 बाई 1 ओवर 5 विच इज 5 एंड x प्लस वाई इज 11। इन दोनों को बस ऐड कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 8, किसी में भी पुट कर दिया ऊपर तो y इज इक्वल टू 3। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव टू आंसर x माइनस 3, तो 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक इवन 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट हमारे पास जो पढ़ रहे हैं वो उनको तो एटलीस्ट ये काफी इजी लगना चाहिए। इवन 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू इट। और जो भी सिली मिस्टेक कर रहा है, आई थिंक आई हैव टोल्ड इट मल्टीपल टाइम्स, सिली मिस्टेक का कोई रूम नहीं होना चाहिए जब भी यू आर सॉल्विंग पेपर। मतलब यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन मार्क्स एज वेल एज मतलब लूज आउट टू द कंपटीशन, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स। अगर किसी ने गलत किया तो मतलब थिंक क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इफ इट इज अ सिली मिस्टेक हाउ कैन यू अवॉइड मेकिंग दैट सिली मिस्टेक। तो ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 28 makes 300 revolutions per minute। Find the speed of the wheel in किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आई थिंक ये तो सिर्फ फिजिक्स का ही क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। तो यू नो द व्हील मेक्स 300 revolutions in 60 seconds, right? In 1 minute, or let's say 1 minute। तो पूरे 1 आवर में कितने करेगा रेवोल्यूशंस? 1 आवर में इट विल डू 300 into 60 revolutions। Now you need to find the speed in kilometers per hour। तो अगर तुमने डिस्टेंस निकाल लिया किलोमीटर्स में कितना कवर करेगा 1 घंटे में, तो यू आर डन। तो यू नो 1 घंटे में वो इतने रिवोल्यूशंस करेगा। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो मान लो ये व्हील है, एक रिवोल्यूशन में ये व्हील कितना कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? दिस इज बेसिकली पेरीमीटर ऑफ द व्हील, पेरीमीटर और circumference of the wheel which is 2 pi r। तो 2 pi r की वैल्यू क्या दी हुई है, r is given, right? हाँ, 28 सेंटीमीटर। so 28 सेंटीमीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए by 100 to convert to meters, by 1000 to convert meter into kilometer। so this is the perimeter of uh, the circle in kilometers, right? now you need to see how much distance did it cover in 1 hour, right? उसने 300 रिवोल्यूशंस किए 1 घंटे में। 1 घंटे में 300 इंटू 60 रिवोल्यूशंस किए, राइट? 1 मिनट में इफ इट डज 300 रिवोल्यूशंस, तो ऐसे कितने मिनट्स हैं 1 घंटे में? 60 मिनट्स हैं। तो 60 बार वो 300 रिवोल्यूशंस करते जाएगा। सो यू जस्ट बेसिकली हैव टू सॉल्व दिस। ये तो सॉल्व भी नहीं करना, दिस इज तो बेसिकली जस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, लेट्स सी व्हाट डू यू गेट एज द आंसर। तो आई थिंक 100 को नीचे छोड़ देते हैं, जो भी आएगा उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 18 into 28 into 2 is 56 into pi। तो दिस इज जस्ट बेसिक मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक अगर तुम ये करोगे तो यहाँ पे चारों में से एक ऑप्शन सही मिल जाएगा एंड दैट इज योर आंसर। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन। तो मैं मल्टीप्लिकेशन पे टाइम स्पेंड नहीं करूंगा बिकॉज इट इज वेस्टिंग टाइम इन द वीडियो, बट इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट होता है डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और भी किसी क्वेश्चन पे अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर
all your doubts. तो next moving on to 77. I think ये पहले किसी क्वेश्चन का रहेगा, हमने डिलीट करना. तो 77 क्या है? Move into pen mode. So in the given figure, AB is equal to 3, CD is equal to 18 centimeter, 3BP is equal to 4CP is equal to 36 centimeter. तो बेसिकली ये फिगर दिया हुआ है हमको, और हमको कहा है कि this is C, नहीं, this is B, this is C, this is B, this is B, this is A, and this is 90 degrees, this is 90 degrees, and we are given what? AB is equal to 3CD is equal to 18. तो AB 18 है, 3CD 18 है, तो CD कितना हुआ? 6. ऐसे 3BP is equal to 36, so BP is 12, right? तो 3BP is equal to 36, so BP is equal to 36 over 3, which is 12. तो ऐसे ही मतलब मैंने पहले का भी निकाला था. Similarly 4CP is equal to 36, so CP कितना हुआ? 9. So now you have to find what is the measure of angle APD. So let's call it theta. तो हम पहले इसको अल्फा पकड़ते हैं और इसको बीटा पकड़ते हैं. तो let's see what is tan alpha. Tan alpha is 6 over 9. Similarly, let's see what is tan beta. This is 18 over 12. So simplifying this 2 over 3. And this is 3 over 2. Oh, I see. Okay. तो देखो ये दोनों लाइंस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं. तो अगर तुम मतलब स्लोप ऑफ द टू लाइंस निकालोगे तो you'll see tan alpha is actually negative minus 2 over 3 and tan beta is 3 by 2. So if you multiply tan alpha into tan beta, you'll see this is slope of line 1, slope of line 1 m1 into slope of line 2 m2, which is minus 2 over 3 into 3 over 2. This is equal to minus 1. So both the lines are perpendicular. If both the lines are perpendicular, theta हो जाता है 90 degrees का. So not difficult again. Easy. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? a plus b minus c is equal to 4, a square plus b square plus c square is equal to 38. Find ab minus bc minus ca. ये तो सीधे आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया एक्चुअली. तो आप सभी ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a plus b plus c, a plus b minus c whole square is equal to a square plus b square plus c square minus plus 2ab minus 2ac minus 2bc. तो तुमको ये इसकी वैल्यू दी है. दिस इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square plus c square is given to be 38 plus 2 into you need to find this value ab minus ac, नहीं actually, oh okay, ab minus bc minus ca. तो दिस इज कॉमन. सो जो इसकी वैल्यू है ये कितनी आ गई? 16 minus 38 over 2, which is 10 28 22 over 2 is equal to minus 7. So option C. This was the very easy. मतलब barely takes 1 minute. 1 minute से भी कम ही लगा होगा most likely. Let's try the next question. So during every financial year, the machine depreciates by 10%. Find the original value or cost of the machine which depreciates by 2250 in the second year. अच्छा, assume करो let the machine की initial cost be x. Initial cost is x. So first year के बाद क्या cost हुई? It depreciates by 10%. तो depreciate कितना हुआ? 10% से 10 over 100 into x. This is the depreciation. So leftover value is equal to 90% of the initial thing, right? So 90 over 100 into x, which is 9 by 10x. अभी second year में depreciates, second year आ गया, depreciates by another 10%. हर साल 10% से depreciate करता है, right? तो अभी इनिशियल वैल्यू क्या पकड़ेंगे इस साल के लिए? 9 by 10x. अब depreciate कितना हुआ? 10% से, so 10 by 100 which is 1 by 10. So this value is given to us as 2250. तो 3750, so 1250. So basically x is equal to 250 into
100, so इसकी वैल्यू हो गई 25,000. So this is also not too difficult. मतलब एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि क्या फंडा है एक्चुअली क्वेश्चन में यूज करने का, तो दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. मतलब सिर्फ मीनिंग समझने की बात है. अगर मीनिंग आ गई तो इट्स लाइक barely two calculations away from the answer, right? The seminar, in a seminar, the number of participants in mathematics, physics and biology are 240, 192 and 168. अच्छा, केमिस्ट्री के लोगों ने लगता है सेमिनार अटेंड नहीं किया. So find the number of rooms required if in each room the same number of participants is to be seated and all of them being in the same subject. अच्छा, तो बेसिकली तुमको दिया हुआ है मैथ्स के 240 लोग एक जगह पे आए हैं, फिजिक्स के 192 आए हैं, और बायोलॉजी के 168 लोग आए हैं एक सेमिनार में. नाउ यू वांट टू सीट देम इन अ सिंगल रूम. तो नॉट सिंगल रूम, तुम मल्टीपल रूम्स में इनको बैठा सकते हो, लेकिन तुमको क्या चाहिए, हर रूम में सेम नंबर ऑफ लोग हों और सेम सब्जेक्ट के लोग हों. तो अगर इसमें मैथ्स है मतलब अगर इसमें एक्स लोग हैं तो सारे रूम्स में एक्स लोग हों, एक्स पीपल, एंड सबका सब्जेक्ट, ऑल पीपल इन द सेम रूम should have same subject. And you want to find minimum number of such rooms. एक तरीका क्या है, हर एक इंसान को अलग अलग रूम में बैठा दो. तो बेसिकली कितने रूम्स लगेंगे, 240 प्लस 192 प्लस 168. कंडीशंस फॉलो हो रही हैं क्या? हाँ, हो रही हैं. क्या कंडीशंस हैं? हर रूम में सेम नंबर ऑफ लोग होने चाहिए. हर रूम में हमने एक इंसान को बैठा है तो सेम नंबर ऑफ पीपल है. एक रूम में सारे जो लोग बैठे हैं वो सब सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए. एक ही इंसान बैठा है तो वो सेम ही सब्जेक्ट का होगा, अलग अलग तो हो नहीं सकता. तो दिस इज वन सोल्यूशन. लेकिन इसमें क्या कहा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स में बैठाना है. तो बेसिकली लेट्स से कि एक रूम में एक्स लोग बैठते हैं, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स के लिए कितने रूम लग रहे हैं, मान लो एम, मान लो फिजिक्स के लिए पी, और मान लो बायोलॉजी के लिए बी. तो एम एक्स इज इक्वल टू 240 नंबर ऑफ रूम्स इंटू एक रूम में कितने लोग. So this is X is number of people in one room, correct? तो क्या बचा, px is equal to 192, bx is equal to 168. और तुमको मिनिमाइज करना है सम ऑफ m प्लस b प्लस m प्लस p प्लस b. तो दिस इज क्लियरली एलसीएम ऑफ 240, 192, सॉरी जीसीडी, राइट? तो जो भी इनका कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर है, देखो अगर मैं एक क्लेम करता हूँ, आई क्लेम x इज जीसीडी ऑफ 240, 192 एंड 168. क्यों? जो भी कॉमन का ग्रेटेस्ट डिवाइजर है, अगर उससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो. तो बेसिकली अगर हमको इन लोगों को डिवाइड करना है, हर रूम में सेम लोग होने चाहिए, तो वो इसका परफेक्ट डिवाइजर होना चाहिए, इसका डिवाइजर होना चाहिए, और इसको भी डिवाइड कर पाना चाहिए, राइट, उस नंबर ने. तो only the divisors of these numbers, any number that divides all the three numbers can be a solution, right? अभी मेरा क्या क्लेम है, जो भी ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो भी है इन तीनों का, दैट इज द आंसर. तो ये क्लेम करने के लिए देखो, यू वांट मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स. मान लो तुमने वन इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल द थ्री. अगर तुमने एक इंसान को हर रूम में भेजा, यू सी यू आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ रूम्स. अगर तुम लोगों को टू रूम्स में भी डिवाइड, दो लोगों को भेजते हो एक रूम में, तो भी you'll get a higher number of rooms, right? इसमें 120, इसमें 96, इसमें 84. तो देखो, तुम कभी भी ऐसा कोई नंबर चूज नहीं कर सकते विच इज नॉट डिवाइडिंग एनी ऑफ दीज नंबर्स. क्योंकि मान लो अगर तुमने कोई ऐसा नंबर चूज किया 7, 7 डज नॉट डिवाइड 240. तो तुम बेसिकली मैथ्स के ही लोगों को सबको इक्वली, मतलब अगर तुम मैथ्स के लोगों को डिवाइड करते हो कुछ रूम्स में, तब तुम ऐसे नहीं कर पाओगे कि सारे लोग हर रूम में सेम नंबर ऑफ लोग हैं, राइट? क्योंकि कुछ लोग बच जाएंगे, बिकॉज व्हेन यू डिवाइड 240 over 7, so you'll see there is a quotient, but then there is a remainder number of people also, right? So you want to divide it in such a way that जो भी नंबर ऑफ पीपल तुम किसी रूम में भेज रहे हो, वो इन तीनों का ही डिवाइजर है. तो naturally this has to be the greatest common divisor.
सो दैट यू कैन मिनिमाइज द नंबर ऑफ रूम्स, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा एक रूम में भेजना चाहते हो लोगों को, लेकिन इस तरीके से भेजना चाहते हो कि वो नंबर ऑफ पीपल दैट गो इनटू द रूम डिवाइड ऑल द थ्री मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी participants or lecturers, or uh, number of participants in each of the group, right? So basically बस 240, 190 to 168 का GCD निकालोगे तो that is your answer, and there's no further trick to this question. तो बस इतना ही खाओ. Moving on to the next question. So 81, the roots of equation ax square plus bx plus 6, if the polynomial this is exactly divisible by x square plus 1. अच्छा, तो polynomial को कैसे डिवाइड करेंगे? Let's say ये क्या दिया हुआ है, x पावर 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b. This is perfectly divisible by, exactly divisible by x square plus 1. तो इसको डिवाइड करने के लिए let's try to divide, देखते हैं क्या आता है. तो x square अगर हम लेते हैं तो x पावर 4, ये माइनस नीचे रखता है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी गेट एक्स पावर फोर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, अभी प्लस एक्स, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू 1 इज x, तो ये सब ट्रैक करते हैं, तो दिस बिकम्स, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास बचा 7x स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी. अभी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 7, तो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 7, तो यहाँ पे आ गया 7x स्क्वायर, और 7 इंटू 1 इज 7, तो a माइनस 1x प्लस b माइनस 7. तो अभी देखो, दिस the highest power of x in the remainder now is 1, लेकिन the highest power of x in the divisor is 2, तो this is clearly not divisible by x square plus 1. लेकिन हमको क्या कहा गया है कि this polynomial that was given is exactly divisible by x square plus 1. इसका मतलब coefficients of सारे numbers should be 0 here, तो a minus 1 should be 0 and b minus 7 should be 0, तो a is 1, b is 7. तो अब हमको दिया है, basically the polynomial becomes x square, the polynomial that is given to us becomes x square plus 7x plus 6 is equal to 0. ये तो ऐसे ही फैक्टराइज हो जाएगा, x plus 1 इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0. आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला सिखाया होगा, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2c 2a. You can also use this, but this was a very straightforward polynomial. So minus 1 and minus 6 are the roots. So option 2 is correct here. So not a very difficult question. मतलब दो तीन चीजों को combine कर दिया and it becomes, मतलब कि हाँ शायद डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा स्क्रीनिंग टाइप का. तो मतलब आप देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो बहुत ही ट्रिकी हो या बहुत डिफिकल्ट हो. मूव ऑन. So in the screening test 2022, okay, two students while solving a quadratic equation committed mistakes. One of them made a mistake in the constant term and got roots as 5 and 9. Another one committed mistake, an error in the coefficient of x, and got the roots as 12 and 4. But in the meantime, they realized they were wrong and managed to get it right jointly. Find the quadratic equation. So देखो, let's say quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Let's say this was the quadratic equation. अभी we are given कि पहला वाला जब सॉल्व करता है उसने कांस्टेंट टर्म में कोई तो मिस्टेक कर दी, सो ही इज नॉट, ही अज्यूम के कांस्टेंट टर्म कुछ और होगा. देखो अगर b सेम है तो, अच्छा let's take a step back. So for any polynomial of the general form ax square plus bx plus c, let alpha and beta be their roots. तो आप सभी को पता होगा there are some properties that root of the quadratic equation follow, right? So alpha plus beta is minus b by alpha into beta is c by a, करेक्ट. ये दो प्रॉपर्टीज हैं. तो अगर किसी भी इक्वेशन का
कांस्टेंट टर्म गलत हो गया, लेकिन बाकी ये वाला टर्म उसने सही निकाला है। इसका मतलब सम ऑफ उसके इक्वेशन करेक्ट होगा, राइट? तो उसने, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, वन ऑफ देम मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म, तो वो कांस्टेंट टर्म गलत निकाल रहा है, या कांस्टेंट टर्म को उसने गलत पकड़ा। लेकिन उसने बी को सही पकड़ा, राइट? बी और ए को सही पकड़ा, इन दोनों कोएफिशिएंट्स को। तो basically alpha plus beta, the sum of the roots depends only on b and a, it does not depend on c। तो इसके आंसर से वी से 5 + 9, मतलब 5 और 9 करेक्ट रूट्स नहीं है, लेकिन 5 + 9 का सम माइनस बी बाई ए ही होना चाहिए। तो बेसिकली यू गेट minus b is equal to 14a, correct? So this is one equation you got. This is correct, right? So 5 and 9 are given the root, got the roots as 5 and 9। हाँ, सिमिलरली सेकेंड वाले ने कोएफिशिएंट ऑफ x में गलती कर दी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स क्या है? a इंटू बी। तो ये भी हमारे पास जो भी है, मतलब वो सही होगा। तो बेसिकली वी नो अल्फा इंटू बीटा, सो 12 इंटू 4 is equal to c by a, which is 48। so c is equal to 48a। ये एक दूसरी इक्वेशन मिल गई। क्या पूछा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, बेसिकली तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसमें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय हो ए हो, इसका मतलब 14 हो, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय ए यानी कि 48 हो। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन यहाँ पे है क्या? इसका क्या है? 4 -4 है, दिस इज इनकरेक्ट। इसका -7/2 इनकरेक्ट। 14/1, दिस इज वन पॉसिबल थिंग। और इसका 17/3, दिस इज रॉन्ग। तो मतलब बस एलिमिनेशन से ही अगर तुम निकालोगे तो भी सी आ गया ऑप्शन, विच इज द राइट आंसर। तो मतलब बस क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से फ्रेज किया हुआ है, लेकिन इट्स सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ओनली, कुछ भी ज्यादा ट्रिकी तो था नहीं। तो देखो, जब भी तुमको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो जो भी assumptions हैं वो लिखो, जो भी गिवन है वो लिखो, और बस तुम्हारे पास 2-3 इक्वेशन आ जाती है, उनको सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर आ जाता है। मतलब यही कर रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस में, मैंने कुछ भी किसी में सोच के ट्रिक नहीं लगाई कोई सी भी। For what value of a, the roots of the equation 2x² plus 6x plus a, तो इक्वेशन डी है 2x² plus 6x plus a is equal to 0। Satisfy the condition alpha by beta plus beta by alpha is less than 2, where alpha and beta are roots। तो देखो, इसको तुम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा लेस देन 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो दिस इज सिंपली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा इज लेस देन 2, which becomes alpha plus beta whole square over alpha beta minus 2 is less than 2, implies alpha plus beta whole square by alpha beta is less than 4। अभी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, क्योंकि बाय जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, माइनस बी बाय और सी बाय। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -6/2, विच इज -3, -3 का स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा क्या है? c by a, so a by 2, so a by 2, 2 ऊपर चला गया, is less than 4, so 2 1 2, 2 2 4, तो कितना हो गया? 9/a is less than 2। देखो, अभी तुमको ये इनइक्वालिटी मिल गई। हाउ टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी? सिंपल सी चीज है। देखो, अगर तुम मान लो, चलो a पॉजिटिव है, लेट्स मेक सम स्पेस ओवर हियर, लेट्स कंसिडर a इज पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो तुम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन नहीं बदलेगी, राइट? सो यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, एंड नाउ ए बिकम्स ग्रेटर देन 9/2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो ये कंडीशन आ गई। मान लो ए लेस देन 0 है। देखो, ए कैन नॉट बी 0। ए 0 का जो भी ऑप्शन है वो गलत होगा डेफिनेटली। ए कैन नॉट बी 0 क्योंकि फिर दिस इक्वेशन will not be satisfied, right? This equation is not even defined when a is 0। तो let's try this। क्योंकि देखो, जब c 0 होगा, सॉरी, c मतलब ये c बाय a बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब ये a 0 होगा, ये वाला a, तो this will become 0 when denominator is 0, the equation is not determined or not defined, right? अगर a less than 0 है तो तुम
अगर मान लो 3 चॉकलेट इज ग्रेटर देन 2 चॉकलेट पता है, अगर तुम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे या माइनस नेगेटिव वैल्यू से किसी भी, तो क्या होगा, लेट्स से -1, तो -3 लेस देन -2 हो जाएगा, राइट। द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो सिमिलरली अगर ए नेगेटिव है और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बिकम उल्टा। पहले क्या था, 9/a इज लेस देन 2, ए से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, इनइक्वालिटी की साइन बदल गई, तो a इज बेसिकली लेस देन 9/2। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन है क्या, विच वैल्यू ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। a लेस देन 0 के लिए सेटिस्फाई करती है क्या, a शुड बी लेस देन 2, इसका मतलब a कैन बी लेस देन 0 ऑल्सो, उसके लिए भी सेटिस्फाई करती है। a शुड बी बिटवीन -1 एंड 1, सो ये गलत है, a 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है। a शुड बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1, तो दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज, राइट, क्योंकि ए की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब 9/2 से भी कम है, -1 से बड़ी है तो भी ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई करता है, इसके लिए भी सेटिस्फाई करता है, तो बेसिकली ए बिगर देन 9/2 और ए स्मॉलर देन 9/2, इट सेटिस्फाइज, करेक्ट। ए कैन नॉट बी 9/2, दिस विल नॉट सेटिस्फाई देन। अच्छा, यहाँ पे लेकिन हमने पकड़ा था a शुड बी लेस देन 0, तो विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ a लेस देन 0 एंड a लेस देन 9/2, राइट। तो बेसिकली फॉर a ग्रेटर देन 9/2 दिस सेटिस्फाइज, एंड a लेस देन 0 a लेस देन 9/2, which means a should be less than 0। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये, तो बेसिकली दीज आर द ओनली टू प्लेसेस वेयर इट सेटिस्फाइज, राइट। सो दिस इज वन कंडीशन, ये भी क्योंकि a लेस देन 0 है और -1 से बड़ा है, तो दिस इज ऑल्सो टेक्निकली करेक्ट, राइट, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ a ऑल्सो दिस इज डिफाइंड एंड दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर पूरा ही आंसर चाहिए, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, देन a ग्रेटर देन 9/2 एंड a लेस देन 0, ये दोनों होने चाहिए, तो इन दैट केस इट विल बी नन ऑफ दीज। तो आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए फॉर व्हाट कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, क्योंकि अदरवाइज इसके लिए और इसके लिए सेटिस्फाई करता है, तो दीज आर बोथ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन लाइकली आंसर शायद 4 दिया होगा, बिकॉज इफ दे वांट द कंप्लीट एंटायर सेट तो they'll say आंसर इज 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब मतलब अभी तक कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, 6 या 7 क्वेश्चन अपने बचे हैं, तो लेट्स ट्राई टू क्विकली रैप देम अप। A circle with area A1 is contained in the interior of a larger circle with area A1 plus A2 if the radius of the larger circle is 3 units, A1 and A2 and A1 plus A2 are in AP, then the radius of the smaller circle। देखो तुमको दिया है स्मॉलर सर्कल with area A1 एंड तुमको बताया A1 plus A1 plus A2, सॉरी आई थिंक A1 A2 और A3 दिया है, तो दिस इज नॉट दिस, सो A1 A2 एंड A1 plus A2 are in AP। तो AP में इसका मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सो A2 minus A1 is equal to A1 plus A2 minus A2। तो इससे क्या आ गया, A2 is minus A1 is equal to A1, so A2 is equal to 2A1, ये आ गई इक्वेशन। देखा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि डिफरेंस कॉमन होता है, राइट। AP मींस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया। तो अभी हमको पता है फर्स्ट सर्कल का एरिया A1 है, सेकंड सर्कल का एरिया A1 प्लस A2 है, विच इज इक्वल टू A1 प्लस 2A1 विच इज इक्वल टू 3A1। हमको बड़े सर्कल का एरिया दिया है, लार्जर सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3A1, हमको A1 निकालना है, राइट। तो पाई आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 3 यूनिट्स, so pi into 9, 3 square मतलब 9, right? So A1 is equal to 3 pi, uh, which is equal to root 3 square into pi। So comparing this with pi r1 square, r1 की value क्या आ गई, radius of the smaller circle root 3। So see, this is also straightforward, not tricky at all। Next question, in triangle ABC, uh, in the triangle ABC, right angle at A and altitude is AD। अच्छा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC और राइट एंगल एट A, सो A B and C।
So A B and C. If BD is 3.6, अच्छा A से एक altitude ड्रॉ किया गया है. This is point D. So BD is given to be 3.6 centimeter and CD is given to be 6.4 centimeter. You are required to find the length of AD. ये तो बहुत ही सिंपल है. So let's call it part 1 and this is part 2. तो you know AD square is equal to part 1 into part 2. जिसको ये नहीं भी आता वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से भी इसको डिराइव इजीली कर सकता है. तो मतलब there is no magic in it at all. तो दिस ये डेरिवेशन भी बहुत आसान सा है. आप लोगों ने क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं या कोई भी सर यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि ये कैसे होता है. ठीक है. तो विच इज 36 इंटू 64/100 विच इज 6 इंटू 8/100 अपॉन 10 विच इज 48. सो 4.8. तो इसका सी मतलब ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. जिसको नहीं भी आता था वो भी मतलब सिंपल एक फॉर्मूला डिराइव करके थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आराम से डिराइव कर सकता था. नेक्स्ट द वर्क डन बाय x-3 men वर्किंग फॉर 2x + 1 डे. तो ये इतना काम करेंगे. लेट्स से एक दिन में 1 यूनिट ऑफ काम करते हैं. 1 यूनिट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इन 1 डे. तो जब भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो assumptions. अगर कुछ भी नहीं दिया तो उसको 1 पकड़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है. एंड द वर्क डन बाय 2x + 1 into x + 4 men in x + 4 days is in the ratio of 3:10. अच्छा तो w भी पकड़ते तो वो कैंसिल ही हो रहा था यहाँ पे. तो x + 4 सॉरी 2x + 1 men in x + 4 days. इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3/10. तो तुमको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो यहाँ पे क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं. अगर वो बनती तो वो भी सॉल्व कर सकते थे. तो 10x - 30 इज इक्वल टू 3x + 12. तो 7x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 6. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये वाला. तो आई थिंक मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन आई थिंक एक आधे मिनट से ज्यादा नहीं लेगा. सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे. एक भी ऐसा लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन मिला नहीं अभी तक. तो tan π/16 प्लस 2 tan π/8 प्लस 4 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालिए. तो मतलब एक क्लियर कट ऑब्जर्वेशन क्या है क्वेश्चन में. दिस इज मान लो दिस इज थीटा देन दिस इज 2 थीटा. दिस इज 2 थीटा. तो आपको कॉट के अंदर आंसर निकालना है. कॉट 2 थीटा या कॉट थीटा के अंदर, राइट. तो दिस इज कॉट 2 थीटा, कॉट थीटा -4 एंड 2 कॉट 2 थीटा. अच्छा तो वी नो tan 2 थीटा की क्या वैल्यू होती है, राइट. 2 tan थीटा बाय 1/tan² थीटा. इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें अगर हम तो हो गया. किसी भी टाइम को अगर हम कॉट नहीं, अच्छा ये कैसे कन्वर्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - tan² है तो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. और क्या कर सकते हैं. तो वी आल्सो नो cot 2 थीटा, राइट. cot 2 थीटा इज cot² थीटा. बेसिकली इसका उल्टा है. तो व्हिच इज 1 - tan² थीटा बाय 2 tan थीटा. तो दिस बिकम्स तो tan को 1/cot लिख लो तो cot² थीटा -1/cot² थीटा इनटू 2 tan थीटा. तो अब आ गया राइट अपने पास सॉल्यूशन क्योंकि हमने इन्वर्ट कर लिया. तो वी कैन राइट दिस cot 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा, राइट. तो ये कितना हो गया cot. तो cot² थीटा -1/2 cot थीटा. तो बेसिकली अगर हम बस ये यूज करेंगे तो आ जाएगा, राइट. तो ऊपर वाले की जरूरत नहीं है. मतलब हम इस फॉर्मूले से cot 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. तो हमको सारे फॉर्मूले कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है. एक आध फॉर्मूला याद कर लिया उससे हमको सब कुछ आ जाता है. तो cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot² थीटा -1. तो मैंने ये ऐसे क्यों लिखा क्योंकि अब इसमें डिनोमिनेटर क्योंकि cot थीटा है तो मैं इसको tan और cot में लिख सकता हूँ, राइट. तो दिस विल बिकम क्योंकि यहाँ पे tan और cot में ही आंसर पूछा गया है. मतलब एक तरीका ये है कि कैलकुलेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू फाइंड द आंसर. बट अदरवाइज आई थिंक या फिर tan π/16 2π/16 और tan π/8 इन सब की वैल्यूज आपको निकालनी आती होंगी यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो यू कैन ट्राई टू डू दैट. बट आई थिंक दिस इज अ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. मतलब थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करेंगे तो आ जाएगा. तो हाफ cot थीटा माइनस हाफ tan थीटा. tan थीटा
तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया. लेट्स ट्राई नाउ. लेट्स ट्राई टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एक्चुअली. tan थीटा जहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम tan थीटा को tan 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे, देखो अगर हम यहाँ पे पाई बाई 8 आ जाएगा, इसका 2 इंटू पाई बाई 16 पाई बाई 8 आ जाएगा, और पाई बाई 8 इंटू 2 पाई बाई 4 आ जाएगा. tan पाई बाई 4 इज 1, दैट वी नो. तो आई थिंक वो कैंसिल आउट अगर हो गए तो हमको tan की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो लेट्स ट्राई दिस अप्रोच. तो tan थीटा इज cot theta minus 2 cot 2 theta. Let's try to use this. So tan pi by 16 कितना हो जाएगा? तो हमको इक्वेशन दी है tan pi by 16 plus 2 tan pi by 8 plus 4, और this becomes tan, मान लो ये थीटा है राइट ऊपर की इक्वेशन में, तो लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट. दिस becomes cot pi by 16, तो ये ऑप्शंस में है minus 2 cot pi by 8. ठीक है, अभी आगे इस टर्म का क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू tan पाई बाई 8. अब पाई बाई 8 को थीटा मान लेते हैं, तो दिस बिकम्स cot पाई बाई 4. इसकी वैल्यू 1 है. नहीं, एक्चुअली cot पाई बाई 8 माइनस 2 cot पाई बाई 4 एंड प्लस 4 जो बाहर का बचा है. तो नॉट श्योर. अच्छा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे राइट. देखो यहाँ पे है 2 cot पाई बाई 8 और यहाँ पे 2 cot पाई बाई 8. तो cot पाई बाई 16 माइनस 4 प्लस 2, ये 1 है तो माइनस 4. सो दिस इज योर आंसर राइट. सो ऑप्शन 2 राइट. एक्चुअली ये प्लस 4 हमने ऐड किया क्या यहाँ पे? ये प्लस 4 हमने ऐड नहीं किया मोस्ट लाइकली. सो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन सी. तो क्वेश्चन 88 में दिया है ए सीकेंट थीटा प्लस बी tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5. तो देखो ये इससे तुम निकाल सकते हो ए सीकेंट थीटा माइनस बी tan थीटा इंटू ए सीकेंट थीटा प्लस बी tan थीटा. कौन सी आइडेंटिटी यूज की मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. करेक्ट. तो बस ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया इसकी जगह पे, इज इक्वल टू 5. अब तुमको इसकी वैल्यू दी है 1, तो ए सीकेंट थीटा माइनस बी tan थीटा इज इक्वल टू 5. अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा ए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/2. करेक्ट. इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 हो जाता है. 5 प्लस 1 6/2 विच इज 3. एंड सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको बी tan थीटा, सॉरी बी tan थीटा इज इक्वल टू -4/2, तो -2 मिल गया. नाउ यू नीड टू फाइंड a square plus b square. You need to find a square b square plus 4a square. तो a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू 3 cos स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 cos थीटा स्क्वायर. b की वैल्यू क्या है? 2 cot स्क्वायर थीटा, 2 cot थीटा माइनस 2 cot थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर 3 cos थीटा स्क्वायर. तो ये कितना हो गया? 9 cos स्क्वायर थीटा इंटू 4 इंटू cot थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि b इज 2 cot थीटा राइट. हाँ, सो बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 9 36 cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे 4 इंटू 9 36 आ गया, तो 36 cos इज इक्वल टू 36 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने. क्या बचा अंदर?
cos square theta by sin square theta plus 1, which is sin square theta यहाँ आ जाएगा sin square by sin square, तो sin plus cos sin square theta plus cos square theta is 1, तो बेसिकली तुम्हारे पास बचा 36 cos square theta by sin square theta, which is b कितना है, b is 4 cot, so this is cot square theta, right? Cot square theta, b की वैल्यू कितनी है, -2 cot theta, तो this becomes 9b square, right? तो ऑप्शन ए, तो मतलब this was quite easy compared to the previous one में you'll have to think about identities, कौन से फॉर्म में लाने की कोशिश करो, तो I tried to use a cot वाला फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे cot में सारी चीजें दी हुई थी, तो मतलब this comes with practice, इसको तो मतलब इतना ज्यादा इंट्यूशन प्रैक्टिस के बाद ही आता है कि क्या यूज करना चाहिए। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 89, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। A fair dice is thrown 3 times, fair dice मतलब डाइस में 1 2 3 4 5 6, इन सब की प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। Probability that the product of three outcomes is a prime number. Product of any number मतलब prime number की क्या प्रॉपर्टी है, it cannot be expressed as a factor of other numbers. तो बेसिकली पहली बार प्राइम नंबर आना होगा, प्राइम और फिर 1 और 1, या फिर पहली बार 1, दूसरी बार प्राइम नंबर और तीसरी बार 1 आना होगा डाइस पे, या फिर पहली 2 बार 1 और तीसरी बार प्राइम नंबर आना होगा, तभी इनका प्रोडक्ट प्राइम हो सकता है। अगर कोई भी नॉन 1 से कोई भी बड़ा नंबर आया 2 बार, तो इट विल बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विच इज नॉट प्राइम। तो अभी ऊपर क्या क्या प्राइम नंबर है, 2 3 5, 3 प्राइम नंबर्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6, ये हो सकता है, प्लस दूसरे वाले की क्या है, सेम ही है, सेम थिंग, प्लस तीसरे वाले की कितनी है, सेम थिंग, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 3/6, तो ये कितना हो गया 2, और ये 3 बार ऐड कर रहे हैं, सो 3 इंटू, तो बेसिकली इसको हटा के यहाँ पे तुम सीधे मल्टीप्लाइड बाई 3 कर सकते हो, तो बेसिकली तुम्हारे पास बचा 1/24, 1/24 इज योर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन, मतलब कोई भी ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी, तो really straightforward question. In the figure ABCD, a rectangle in which segments AP and AQ are drawn, shown in the figure. The length. देखो ABCD is a rectangle. You are given ABCD is a rectangle. यहाँ से कोई ये पॉइंट Q है, यहाँ से कोई ये पॉइंट P है। अब तुमको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, and you're given sides of the rectangle. This is 60, this is 90. Your answer, what is AP plus AQ? AP plus AQ is question mark. अच्छा, this is not very difficult. देखो, in the right angle triangle APB, AB की साइड दी है, हाइपोटेनस निकालना है, तो तुमको पता है sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, sin 30 is 1/2, ऑपोजिट इज 90, हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस इज बेसिकली AP, तो इससे तुम्हारा आ गया AP is 180। दूसरा क्या है AQ, इसको भी ऐसे ही निकाल लिया, ये वाला 60 साइड दिया हुआ है तुमको, तो sin 30 is equal to 60 upon hypotenuse, which is AQ, so AQ is equal to 1 upon sin 30 into 60, which is 2 into 60, so 1/120, तो 120 प्लस 180 कितना होता है 300। तो ये थे शाहू कॉलेज के सारे 90 मैथमेटिक्स के सारे 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया या किसी में भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, हम में से कोई ना कोई आपको जरूर जल्दी रिप्लाई कर देगा। तो अभी जिन बच्चों की एग्जाम हो गई उनको तो सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, जिनकी नहीं हुई दे कैन वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नन ऑफ द क्वेश्चंस आर एनी टफ, कोई भी टफ नहीं था, इजी क्वेश्चंस, लेकिन जनरली कहीं ना कहीं थोड़ी सी, एक्चुअली ज्यादातर क्वेश्चंस में तो ट्रिक भी नहीं थी, मतलब मोस्ट ऑफ देम वर इजी, मे बी अ कपल ऑफ देम वर ट्रिकी, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ लिटिल लेंथी टू कैलकुलेट, लिटिल लेंथी, बाकी सब तो मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मतलब बेयरली आपको 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स आई गेस। 20 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इफ यू टेक इवन 1 मिनट 20 मिनट्स, पहले क्वेश्चन को 3-4 मिनट ले लो, तो मतलब मे बी 20 to 25 मिनट्स मैक्स मैथ सॉल्व करने में। तो ये थे पेपर के सोल्यूशन।